Hello everyone, good afternoon, good morning, wherever you are. Good morning to all of you. This is Suraj Prakash Singh, working as an assistant professor in the School of Management Sciences. Welcome you all to the video series which I have been already uploading and talking with you in these previous days. I have already covered so many of topics related to banking, and hope you are enjoying all the videos and clarifying all your concepts, doubts on that topic itself. So I am very glad to welcome you all again to this video series which I am going to talk. So today we are having a most interesting and one of the important topic for any corporate company or for any new company or for an existing company. Today we will talk about the issue management. So चालू करते हैं. Let's start with this issue management. What is issue management? What are the procedures? Why we use this one? And what are the attributes related to this topic or concept? So let's start. So till now we have already completed regarding this money market instruments, banking, what are its products and services, etc., etc. Today we will go into a different picture in which we will talk about the securities, right? What are securities? And while talking about the money market instruments, I have already talked about the capital market, or I have given you the summarized version for what is a capital market. So let's start with a know-how what is a issue management. In this आपको मैं एक ब्लैक बोर्ड में एक स्टोरी की तरह इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, उसके बाद अपन डिटेल्स में आएंगे. सो लेट्स समहाउ थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट के तौर पर हम देख लें कि व्हाट इज एन इशू मैनेजमेंट. So when we are talking about issue management is a broad concept which forms the backbone of new or existing company. कहने का मतलब जब भी हम एक नया कंपनी स्टार्टअप करते हैं या फिर ऐसी कंपनी जो हम एक्सपैंड करना चाहते हैं, उनके लिए ये इशू मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. Every company has their own financial needs, and to meet it up they require ample and hefty amount. When I am talking about this hefty, this talks about the large amount. जब हम hefty amount की बात करते हैं तो large amount. कोई भी startup करने से पहले definitely we need some capital, and not some capital, it's a huge capital. So this issue management somehow helps you in getting this hefty amount of funds. So this requirement can be fulfilled with this issue management. This public is the main source of the funds. Now जब आप स्टार्टअप करने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है, it's for the public only. So why not, whatever the capital we need, why not to borrow that money from the people and give some benefits to them. I'll clarify the example. मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्यों हम पब्लिक को अप्रोच करेंगे. Clear? Next, when we are talking about in a layman language, the mechanism consists of two important words, which is issue and management. इसको भी मैं एक डायग्रामेटिक तौर पर मैं आपको बताऊंगा. Generally the capital market deals with this activities. मैं आपको बताना चाहूँगा that total financial system is being divided into four components, among which component, one of them component is financial market. That financial market is again divided into two types, which is capital market and money market. Regarding that money market, we have already talked about their instruments and the salient features of the money market. Today definitely this issue management comes under the part of capital market, and we'll talk about the whole capital market. Clear? इसमें सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज की बात छोड़ के हम कैपिटल मार्केट के बारे में पूरा बात करेंगे, बिकॉज कैपिटल मार्केट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, विच इज प्राइमरी मार्केट, और वी कैन से दैट इशू मार्केट, and in that issue market only the issue management takes place. And in a secondary market, whatever the securities has been issued to the public are being bought and sold. I'll give you the full
full picturized view of this one. So what this the main function of primary or the capital market is what? That is to facilitate the transfer of funds from willing investors to the investors setting up new corporate enterprises or going in for expansion, diversification, growth or modernization, or we can say that getting the funds from the general public for various purposes by the company. जाहिर सी बात है, ये मार्केट का काम क्या है कि उन लोगों से पैसे लो जिनके पास ज्यादा है और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट टू and give to those entrepreneurs who want to establish a new concern or want to diversify or want to expand their business for their growth and development. उन लोगों से पैसे लो जिनके पास पैसे हैं और वो इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है, and give that money to that people who requires this one for varieties of purpose. Before going into issue management, we must know the issue and primary market. उसके फीचर्स क्या क्या हैं उसको जानने से पहले हम पूरे चार्ट को एक बार पढ़ लेते हैं और जान जाते हैं. सो ध्यान से इस टोटल स्टोरी और पिक्चोरियल व्यू को देखिएगा. डेफिनेटली दिस इश्यू मैनेजमेंट विल बी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन. सो लेट्स डू दिस वन. अब आते हैं इश्यू मैनेजमेंट पे, राइट. सबसे पहले इशू मैनेजमेंट में आने से पहले वी शुड नो वेयर इट एग्जिस्ट, कहां पर वो आना चाहिए. सो जाहिर सी बात है IFS डिवाइडेड है 4 कंपोनेंट में, जिसका एक कंपोनेंट फाइनेंशियल मार्केट है. क्लियर? IFS इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, जिसका एक पार्ट, बाकी पार्ट से उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स भी आते हैं, उसको अभी नहीं देना है अपने को. एक पार्ट उसका जो है वो फाइनेंशियल मार्केट है. दिस फाइनेंशियल मार्केट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, विच इज कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, राइट. This capital market is being divided into 2 types, which is number 1 primary market and secondary market. सभी को क्लियर है that the total IFS has been divided into 2 types, 4 types, among which there is financial market, which is again divided into 2 types, capital and money market. Primary market, capital market को फिर divide किया गया है primary और secondary market में. Clear? अब बात करते हैं इस total capital market को कैसे. So this capital market when divided with primary and secondary. So capital market क्या होता है हम जान लें एक बार. These are the market which deals with long term funds, which deals with long term funds. ये मैं इसलिए बता रहा हूं because before going into concept we should know the base from where it has come, right. हमको वो पता ही नहीं रहेगा तो इंट्रोडक्शन पार्ट में we won't be able to write anything. Clear? हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे इशू मैनेजमेंट. इवन अ एग्जामिनर, इवन अ रीडर ऑफ योर आंसर बुक विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर इट हैज कम. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस वन. सो पहले पिक्चर में आपने बताया कि कैसे मार्केट आया, मार्केट में फिर कैपिटल मार्केट कैसे आया. सो कैपिटल मार्केट बेसिकली डील्स विद द लॉन्ग टर्म फंड्स एंड द सिक्योरिटीज. सिक्योरिटीज के बारे में बात करती है. और सिक्योरिटीज में आपको पहले ही बता चुका हूं दैट सिक्योरिटीज में आपको पहले ही बता चुका हूं जो ये डील करता है शेयर्स, डिवेंचर्स, डेरिवेटिव्स एक्सेट्रा. फिलहाल के लिए तो ये सोच के चलते हैं. क्लियर?
Clear everyone? I think you should have been clear. Right. Now this primary market is being divided into this primary market is otherwise known as issue market और इसे कहते हैं न्यू इशू मार्केट. And here only there lies the issue management. Clear everyone? I think it has been clear to everyone. And basically this secondary market is otherwise known as stock exchanges, where the buying and selling of these securities are done. I think the picture is right now clear. So अपने को basically आज के टॉपिक में ये पढ़ना है, which consist in this one. ये आता है इसमें और ये आता है IFS के फिनेंशियल मार्केट में. अब शायद पिक्चर पूरी तरह से क्लियर है कि फ्रॉम वेयर इट हैज come, because we should know the basics, right? We should know from where it has come. Clear? I think it has been clear to everyone. Now, अब जाहिर सी बात है इस टॉपिक को अपने को पढ़ना है, तो इस टॉपिक पे बारे में आते हैं. Why I am going slow? Because we should know where from it has come, so that you should have got some options to write when you are having this questions with you. Clear? Now, अब आते हैं इशू मैनेजमेंट में. ध्यान से इस चार्ट को देखिएगा. इशू प्लस मैनेजमेंट, इशू प्लस मैनेजमेंट. सो नाउ हमको तो पता है ये प्राइमरी मार्केट है. प्राइमरी मार्केट में किसका इशू है? फॉर डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंशन एंड फॉर एक नए कंपनी के लिए. नया कंपनी के लिए अगर शेयर्स फ्लोट करेंगे तो उस समय बात करेंगे. अब बात करते हैं कि इशू किस चीज की. ये भी तो जाहिर सी बात है, अपने को जानना है कि इशू किस चीज की. नाउ इशू ऑफ व्हाट? इशू ऑफ सिक्योरिटीज. इशू ऑफ सिक्योरिटीज. Now what are the securities here? The shares, debentures, derivatives, any stock. I can say other stock. इसको हम लिख सकते हैं. Clear? So issue of what? The securities which are shares, debentures, derivatives, stock, other stock. सो इशू तो पता चल गया कि प्राइमरी मार्केट या इशू मार्केट में अपन को इशू क्या करना है? द सिक्योरिटीज. व्हाट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज? द शेयर्स, डिवेंचर्स, डेरिवेटिव एंड स्टॉक एंड अदर्स. क्लियर? नाउ दिस इज द साइन विच वी हैव, दैट इज प्लस साइन. तो इशू, टोटल इशू को मैनेज करना है. सो बेसिकली एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट वी ऑल नो दैट अ मैनेजमेंट कंप्राइजेस ऑफ 6 or 5 important functions which we have to follow every time while managing something. What are the functions? It is nothing but the planning, organizing, directing, coordinating and लास्ट वन इज द कंट्रोलिंग. क्लियर? तो हम ये तो कह सकते हैं कि अगर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग इज बीइंग अप्लाइड इन द सिक्योरिटीज, वी आर हैविंग द बेस फॉर इशू मैनेजमेंट. सो हर मैनेजरियल कॉन्सेप्ट अगर हम सिक्योरिटीज में इशू करते हैं फॉर द एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द सिक्योरिटीज और द कंपनी और द एंटरप्रेन्योर, देन वी फॉर्म द बेसिस ऑफ issue management. I think it is clear to everyone. Now in this topic we will definitely cover 3 activities which are being done in issue management. होता है pre issue, issue
एंड पोस्ट इशू। जाहिर सी बात है, लेट्स से वी हैव टू गो ऑन अ वॉर, किसी युद्ध में जाने से पहले आप जाहिर सी बात है पहले वाले तैयारी करते हैं, फिर युद्ध होता है और उसके बाद आपको पता चलता है कि कितने लोग शहीद हुए एंड हाउ मेनी पीपल हैव सर्वाइव्ड एंड वी हैव वॉन और नॉट। सेम थिंग हैपेंस विद द सिक्योरिटीज। बेसिकली बिफोर इशूइंग द न्यू सिक्योरिटीज दे प्रिपेयर for themselves, they prepare for what are the documents required for an public issue and उसके बाद वो एक्चुअली में इशू करते हैं और लास्ट में पोस्ट इशू में देखते हैं कि वेदर दैट इशू वाज सक्सेसफुल और नॉट, वेदर द सब्सक्राइबर हैव गॉट देयर सर्टिफिकेट्स और नॉट, वेदर दे हैव मेड द पेमेंट और नॉट, एंड वी हैव टू कलेक्ट द फीडबैक फ्रॉम देम। नाउ इसी चीज को हम यहां पर बेसिकली डिवाइड कर दिए हैं। किस तरीके से? हम अगर देखना चाहें तो इस प्री इशू पोस्ट इशू को हम यहां पर भी दिखा सकते हैं दैट यहां पर ये हो गया प्री इशू, इन दिस बेसिक यहां पर एक्शन होता है, दैट इज एक्शन और इशू टेक्स प्लेस, और इशू करते समय हमको ये दोनों चीजें देखनी जरूरी है। क्लियर? लास्ट आफ्टर द इशू हमको क्या करना है? कंट्रोलिंग, विच इज पोस्ट इशू। नाउ वी ऑल नो दैट कंट्रोलिंग मीन्स व्हाट? कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड वन। इसको कंपेयर करेंगे इससे टू नो व्हाट? द डीमेरिट्स और डेविएशंस। डेविएशंस जानने के बाद वी विल टेक स्टेप्स टू इरेडिकेट। दिस इज द टोटल पिक्चर which we are going to perform in issue management. So if you are going for a story, then definitely we can know what is the story is all about. Clear? अब मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक ये जो स्टेप्स हैं उसको हम फॉलो करते हुए एक पॉइंट पर पहुंचेंगे और हम देखिएगा कि इशू मैनेजमेंट को हम फुलफिल कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट एग्जाम्पल। ये पिक्चर सब ध्यान रखिएगा बिकॉज दिस इज वेरी मच नेसेसरी व्हाइल राइटिंग योर आंसर, और बेसिकली आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी होता है। क्लियर? ये एग्जाम्पल बड़े ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक बार के लिए 3 तरीके से डिवीजन कर देते हैं। नहीं, चलिए देखिए, दिस इज द चार्ट वी हैव। लेट्स से सपोज मिस्टर ए, एक बार के लिए just a sec, why not to have a 3-view picture? Why not to have a 3-view picture? Right, एक बार के लिए देखते हैं 3-view picture. So let's say this is Mr. A, right? This is Mr. A who wants to establish a new business. वो क्या करना चाहता है? एक न्यू बिजनेस बनाना चाहता है। क्लियर? लेट्स से इट्स अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेट्स से इट्स अ बहुत बड़ा कंपनी। जियो नहीं ले सकते, उसका नाम है तो एजियो कर देते हैं। लेट्स से एजियो छोड़िए, कुछ भी उसका नाम के अनुसार, लेट्स से ए कंपनी लिमिटेड वो खोलना चाहता है। ही डिसाइडेड, what he has decided? He had decided to open up a company, a new company. Clear? जाहिर सी बात है उसको बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी स्टार्टिंग में, राइट? फॉर दैट रिक्वायरमेंट्स दे नीड कैपिटल। सो वो कैपिटल कितना चाहता है? लेट्स से दिस इज 10 लाख ऑफ रुपीज। ही वांट्स द कैपिटल ऑफ 10 लाख ऑफ रुपीज। क्लियर? उसके पास लेट्स से ओन्ड कैपिटल जो उसके पास है वो लेट्स से
5 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए हैं। मिस्टर ए जो एक नया कंपनी खोलना चाहता है विद अ कैपिटल ऑफ 10 लाख एंड ओन्ड, उसके पास अपने खुद के पास 5 लाख ऑफ रुपीज हैं। देन उसके दिमाग में आया कि वो 5 लाख रुपए ना होंगे तो वो काम तो कर नहीं पाएगा। क्लियर? So the very first step what he is doing is that the promotional activities is being done. Promotional activities is being done. Now what is that promotional activity? This is nothing but idea generate किया कि वो एक business खोलना चाहता है। Second, he decided the amount of capital. Clear? He decides the amount of capital. Then he decided the sources from where it has come. And last, implementation के बारे में वो documents देखा. For that, documents preparation is being made. Documents preparation is being made. Clear? I think it is right now clear. So एक प्रमोटर जो एक्टिविटी फॉलो करता है, प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर वो इंसान होता है जो नया बिजनेस सेटअप करता है। वो नया बिजनेस सेटअप करता है, उसका खुद का आइडिया होता है और उसे वो एक सक्सेसफुल बिजनेस में इंप्लीमेंट करने के लिए कोशिश करता है। क्लियर? सो प्रमोटर डज दिस एक्टिविटीज। अपने पिक्चर में क्लियर है कि नया बिजनेस खोलने वाला है, कैपिटल 10 लाख रुपए, ओन कैपिटल 5 लाख रुपीज। ही हैज ऑलरेडी डन द प्रमोशनल एक्टिविटीज, राइट? नाउ द चांसेस कम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सोर्सेस। ये सोर्सेस उसके पास 5 लाख रुपए खुद के हैं एंड डेफिनेटली ही थिंक्स अबाउट दैट आई शुड बोरो और आई शुड get that capital or I should raise that capital from the public. So ये जो less 5 लाख रुपए हैं, he wants to borrow. He wants to borrow from the public. Now this borrow is what? The new issue. Borrow is new issue. अब यहां पर next picture पे आते हैं, right? अब वो क्या डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई मुझे अब 5 लाख रुपए तो बोरो करने हैं। हाउ विल दे मेक, हाउ विल हैव दैट फेथ? लोगों को फेथ कैसे आएगा कि वो 5 लाख रुपए मुझे देंगे? कैसे देंगे, क्या देंगे? उससे पहले बिफोर बोरोइंग द मनी फ्रॉम द पब्लिक और द डायरेक्ट पब्लिक, दिस इशू मैनेजमेंट इज बीइंग मैनेज्ड बाय सेबी। इस इशू मैनेजमेंट को सेबी ऑर्गेनाइज करता है या सेबी इसे रेगुलेट करता है। सेबी इसे रेगुलेट करता है। सो जाहिर सी बात है, अपने को कंपनी खोलनी है, कंपनी का लाइसेंस ना मिले, जब तक कंपनी को ओपन अप नहीं करना है, जब तक डिसीजन नहीं होगा कि कंपनी कैसे ओपन होगी, आपको कोई भी कंपनी खोलने से पहले रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा ना। The same thing happens here only. Before opening up a company, new company, before going to the public for an issue, कोई तो ऐसा आप जाओगे और किसी से पैसे मांगोगे तो वो दे नहीं देगा, वो डायरेक्टली देगा नहीं, आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा। क्योंकि आपको कन्विंस किस करके देगा? यू आर ऑथेंटिक एंड यू हैव गॉट अ कंपनी विथ यू, आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन दैट वन एंड दैट कंपनी विल बी floated in the market, listed in the stock exchanges and the buying and selling of the securities will be done. ये आपको देना है। वो कैसे देना है मैं आपको बताऊंगा। प्रमोशनल एक्टिविटीज करने के बाद सबसे बड़ा चीज होता है वो डिसीजन लेना कि उसे लोगों से पैसे कितने चाहिए। तो वो डिसाइड यहां पर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो उसे पैसे कितने चाहिए? 5 लाख ऑफ रुपीज फ्रॉम पब्लिक। उसके दिमाग में ये बात आता है कि 5 लाख किसी एक इंडिविजुअल से मांगने जाऊंगा तो वो देगा नहीं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट if I am going for a single individual, the single individual will not pay me that 5 lakh of rupees. वो हमें 5 lakh of rupees नहीं देगा। Clear? So from where will get? कैसे देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे, वो
नेक्स्ट वीडियो में आप रहिए, स्टे कनेक्ट रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं कि ये 5 लाख के बाद क्या प्रोसीजर होना है। फॉर टाइम बीइंग, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।